Hello everyone, how are you? Welcome to all of you in this chemistry lecture. This is the third lecture on aldehyde, ketone and carboxylic acid. In this lecture we are going to learn the methods of preparation of aldehyde and ketones. So let us start with this lecture. First, preparation of aldehydes and ketones. Preparation of aldehyde and ketones. First, by oxidation of alcohol. You have already studied about this method in previous chapter. कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. जब आपने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट हियर. रिवाइज भी करने वाले हैं और ये मेथड भी सीख लेंगे हम लोग कि व्हेन यू हैव RCH2OH, दिस इज व्हाट? दिस इज 1 degree alcohol. 1 degree alcohol. Why this is 1 degree? OH is bonded to 1 degree carbon. Why this is 1 degree carbon? Because this is bonded to only 1 carbon. So when this 1 degree alcohol reacts with PCC or PDC, PCC क्या है? pyridinium या pyridinium chlorochromate and pyridinium dichromate. PCC, pyridinium chlorochromate and PDC, pyridinium dichromate. Or you can use also what? CrO3. So when you have 1 degree alcohol and you are using PCC or PDC or CrO3, then you get what? RCHO, and this is what? This is aldehyde. अब इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि दिस अल्कोहल रिएक्ट विद दिस एंड फॉर्म दिस. वर्ड में आपको क्या आना चाहिए? आपको ये रिएजेंट याद होने चाहिए, और रिएजेंट याद है आप आराम से लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. सो व्हेन 1 degree alcohol react with this PCC or PDC or CrO3, then it forms aldehyde. This is the first. Second method, 3 पार्ट में कर देता हूं मैं इसको. सेकेंड, बाय dehydrogenation of alcohol. हाँ, यहां पे मैं एक और ऐड कर सकता हूं. दिस इज 1 degree alcohol. When you have 2 degree alcohol like this is 2 degree alcohol, and when 2 degree alcohol reacts with CrO3, then it forms RCr double bond OH, double bond यहाँ पे C double bond OR ऊपर लिख दिया मैंने. You have 2 degree alcohol reacts with CrO3, then it forms ketone. This is ketone. PCC PDC यूज करेंगे तो 1 degree से aldehyde, बट यहाँ पे हम PCC और PDC यूज नहीं कर रहे हैं. When you have 2 degree alcohol, then you have to use this CrO3, then it forms what? Ketone. Oxidation. Oxidize कर दिया आपने. Oxidation. Next, by dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. DE का मतलब what? Removal. Hydrogenation का मतलब हाइड्रोजन. You are removing hydrogen from alcohol. Again you have 1 degree alcohol. When this 1 degree alcohol reacts with copper vapor, copper metal, ठीक है, then it forms what? RCHO, aldehyde. क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? एल्डिहाइड. 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो RCHROH, कॉपर
or you can take Ag also, copper or Ag, vapors. ठीक है, when we pass alcohol vapors over copper or Ag, then we get what? Aldehyde. और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको? कीटोन, C डबल बॉन्ड OR. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कीटोन मिलने वाला. कितने मेथड हो गए? फर्स्ट, we are preparing aldehyde and ketones by oxidation of alcohol. We are using these reagents. In dehydrogenation, we are using copper or Ag, and we are getting aldehyde and ketone. Okay, ये क्लियर हो गया आपको? पक्का? थर्ड वन ये आप लिख लो, इसके बाद मैं उसमें ऐड करता हूँ. आप इसको पॉज करके आराम से लिख लेना. ठीक है, दिख रहा है ना पूरा भी? ओके, चलो मैं रब करता हूँ इसको. ये फर्स्ट का. So now we have two methods for the preparation of alcohols. From alcohols, two methods for the preparation of aldehyde and ketones from alcohols. Okay. वन मिनट बेटा. थर्ड मेथड कौन सा है? फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजिनेशन, एंड थर्ड is what? From alkenes and alkynes. From alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, from unsaturated hydrocarbon. From unsaturated hydrocarbon. ये दोनों में से आप कोई भी मिल सकता है आपको, alkenes and alkynes, और from unsaturated hydrocarbon, that may be alkene or alkyne. ये इसमें क्या है बेटा? फर्स्ट बाय, इसमें भी फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, बाय ओजोनोलिसिस और ओजोनोलाइसिस. By ozonolysis. So when you have an alkene, ये already discuss हो चुका है. When you have an alkene, this alkene reacts with O3. What is O3? Ozone. When alkene reacts with ozone, this is the general representation for alkene, then we get this. ये इसको थोड़ा सा और अच्छा लगे तो मैं ऐसे कर लेता. हमने क्या कर दिया, ये जो अल्कीन था ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसमें 3 ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया है इन 2 कार्बन के बीच में. सो दिस इज नोन एज ओजोनाइड. ओजोनाइड. यू हैव दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्कीन. दिस रिएक्ट्स विथ ओजोन and forms what? Ozonide. And then we add zinc in water. So what happens? ध्यान देना इधर, ये यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से. पहले हम लोगों ने एक हाउस बना लिया और फिर उसको वहां से ब्रेक कर रहे हैं. पहले बड़ी मेहनत से लोग हाउस बनाते हैं और फिर बाद में परिवार बड़ा होने पे उसको ब्रेक करना पड़ता है. हाँ, तो ऐसे यहाँ पे भी है. पहले हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और ये ओजोनाइड बनाया और फिर यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं. यहाँ से देखो, तो जब आप ब्रेक करोगे तो ये ऑक्सीजन फ्री हो गया, ये वाला ऑक्सीजन फ्री हो गया, ये ऑक्सीजन, और ये इससे अटैच है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा है. तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच होगा और ये फ्री हो गया. तो ये फ्री होके क्या हो जाता है? जिंक ऑक्साइड. Zn के साथ ये फ्री हो गया. और यहाँ पे देखो क्या मिला मुझे, ये तो ऐसे ही है C और इससे O अटैच है. ठीक है, अगर मैं समझने के लिए बोल देता हूँ, जैसे यहाँ से हाफ बॉन्ड मिल गया और यहाँ से हाफ बॉन्ड, हाफ कितना हो गया? 1, और 1 पहले से था तो कितना हो गया? डबल बॉन्ड. ये बेटा C किससे अटैच है? O से. ये फर्स्ट वाला मैंने बना दिया यहाँ पे. फिर यहाँ पे भी ये ऑलरेडी एक बॉन्ड है, फिर हाफ बॉन्ड यहाँ से ले लेते हैं और हाफ बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ पे भी कितने हो गए? डबल. तो फिर से C यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस C डबल बॉन्ड O. तो एक यहाँ से C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ से C डबल बॉन्ड O. सो अब ये C डबल बॉन्ड O जो आपको दिख रहा है, अब इसमें ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है.
कुछ बात समझ में आई? फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ये ऊपर का रब करता हूँ मैं, इससे आपको और क्लियर दिखे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। सो यू हैव दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2. First you are adding what? O3. After adding O3, then you get what? C, H and H. O, C, H and H. Then O and O. This is what? This is ozonide. Ozonide. An intermediate. Now we are adding Zn plus H2O. Then what happens? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद देखो बेटा, ये तो फ्री हो गया, फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ये देख लो आप, C है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया। और फिर क्या, ये देखो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके पास है, हाफ इधर से आ गया और हाफ इधर से, तो ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड O। और फिर प्लस यहाँ पे भी सेम है, सो CH डबल बॉन्ड O। एक इसके पास ऑलरेडी है, ये फ्री नहीं हुआ, हाफ यहाँ से और हाफ इधर से, एंड प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट वी हैव, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड, मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आप एल्डिहाइड फॉर्म करोगे या कीटोन फॉर्म करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि यहाँ पे क्या अटैच है, इस हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या अटैच है, ठीक है। इसको आप लिख लो, पॉज कर लो और लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो ये रब कर रहा हूँ, लिख लोगे आप लोग। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया कैसे ब्रेक करना है इसको। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड C and then CH3CH3. You have this alkene, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो, फर्स्ट you have to add O3 and in second step you have to add zinc in presence of water. डायरेक्ट लिख दिया, ये 2 स्टेप पे किया था ना, अब एक साथ कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या करने वाले हो आप क्या करने वाले हो? शॉर्टकट में देखो, ये जहाँ पे जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन को आप छोड़ो, ये 2 कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहीं से इसको ब्रेक कर दो, ये जो डबल बॉन्ड इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? CH3CH, और फिर यहाँ पे क्या ऐड कर दो? डबल बॉन्ड O। यही तो किया था आपने, डबल बॉन्ड O किया था। और फिर यहाँ पे भी कर लो, प्लस यू हैव व्हाट? CH3, फिर यहाँ पे C है और ये CH3 है, इसको मैंने ब्रेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं? डबल बॉन्ड O। सिंपल। दिस इज व्हाट? दिस इज एन एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज व्हाट? कीटोन। सो नाउ यू हैव एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। बट मैंने आपके लिए स्पेशल क्या बोला? स्पेशल आपसे क्या बोला? स्पेशल क्या यहाँ पे याद रखने का है कि जहाँ पे भी जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वहाँ से मैं इसको ब्रेक करूँगा, और इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड लगा दिया O, और इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड O, और फिर देख लूँगा इस कार्बन के पास दोनों, फिर से 2 कार्बन अटैच है तो कीटोन हो गया, और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बना दिया। ये शॉर्टकट है, ये मैकेनिज्म टाइप का है, समझो आप, ये नॉर्मल सा मैकेनिज्म है, बट ये शॉर्टकट में कैसे हम बनाएंगे। इसका दूसरा देखो आप, दूसरा कि व्हेन यू हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लाइक दैट, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि आपके पास यू हैव दिस एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, ये आपके पास एल्डिहाइड है, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास कीटोन है। You have this propionaldehyde and acetone. Then we have a compound A. On ozonolysis of this compound O3 followed by ZnH2O, we get these 2 products. Then what is A? तो आप क्या करोगे? कितना सिंपल है, देखो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए।
कि आपके पास यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। तो और इसको भी ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया ऐसे CH3, सेम ही है बस आपको समझाने के लिए। अब जिन दो कार्बन, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C, तो ये पूरा हटा दो यहाँ से, ये पूरा यहाँ से हटा दो, ये पूरा हटा के इन दो कार्बन के बीच में क्या लगा दो आप, डबल बॉन्ड। तो आपका कंपाउंड क्या होगा, A क्या होगा आपका, फिर आपका A होगा CH3 CH2, देन क्या बेटा CH, क्या रहेगा आपके पास CH, फिर क्या डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या बेटा CH3 एंड CH3। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर आंसर, दिस इज A। क्लियर हो गया। सो अल्कीन दिया है तो कौन सा एल्डिहाइड कीटोन बनेगा वो भी आप शॉर्टकट में बता सकते हो, ये यूज करके ओजोलिसिस। और व्हेन यू हैव एन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, एल्कीन, देन यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। गेटिंग द पॉइंट, क्लियर हो गया, पक्का। चलो लिख लो फटाफट तो। ओके, पॉज करो और लिख लो इसको, मैं रब कर देता हूं। सो नाउ यू हैव 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट मेथड कौन सा था, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ऑन 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PCC PDC, वी गेट एल्डिहाइड। when we take 2 degree alcohol and when we are using CrO3, then we get ketone। and second by dehydrogenation of alcohols, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कॉपर और Ag। और थर्ड क्या है, बाय अनसैचुरेटेड और फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसमें आपने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया, कौन सा, फर्स्ट मेथड इज बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड का सेकेंड B। इसमें क्या है, by hydration of alkynes। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत इंटरेस्टिंग है। by hydration of alkynes you have this alkyne CH triple bond CH and you are using this HgSO4 and H2SO4, HgSO4 and H2SO4। सो ये दोनों तो वाटर में है, तो मतलब इनके पास आपको हाइड्रेशन करना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड करना है। सो वाटर ऐड करना है, देखो आप यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो अल्काइन है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, और मुझे जब भी आपको HgSO4 और H2SO4 लिखा रहेगा तो आपको हमेशा क्या ऐड करना है, वाटर, H प्लस और OH माइनस इन दो कार्बन पे ऐड कर देना है। बट ये कैसा है, सिमेट्रिकल, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो ये H आप यहाँ पे ऐड करो या यहाँ पे, OH इधर ऐड करो या इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक प्लेस पे आप हाइड्रोजन डाल दो, दूसरे प्लेस पे क्या डाल दो आप, OH। कभी when they are giving in question what, HgSO4 as well as H2SO4, then we get HC और क्या बेटा, H डबल बॉन्ड। भाई मैंने एक ऐड कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, डबल बॉन्ड, फिर C और H, और यहाँ पे क्या बेटा, OH। ये मिल गया मुझे इंटरमीडिएट, और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट में क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और OH भी दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज इनॉल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इन, और इसमें OH है तो क्या हो गया, ऑल। दिस इज नोन एज इनॉल। अब ये जो इनॉल है वो रीअरेंजमेंट में जाएगा। दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। फिर से यहां पे मैंने ऐसे बनाया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, OH। सो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। सो क्या मिलेगा मुझे, H, फिर H, एक और H आ गया, पहले से 2 H पहले से था, एक और H, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर क्या बेटा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड OH,
or this is CH3CHO means this is acetaldehyde. This is acetaldehyde. ऑलरेडी मैंने जब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व भी कराया था आपको, ठीक है। सो दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। एक और चीज आपने ध्यान दिया यहाँ पे, ये एरो का लेंथ इधर ज्यादा मैंने बनाया है और इधर थोड़ा सा कम बनाया है इधर, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फटक से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेबल कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में, ये वाले फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में। परसेंटेज में नहीं बता रहा हूं कि ये 1% है कि ये 99%, मतलब ये जितना बनेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। बट वो सब डिस्कशन जब आप अभी तो आगे भी तो पढ़ना है ना केमिस्ट्री, तो उधर पढ़ेंगे हम। बस यहाँ पे क्या याद रखने का मुझे, टॉटोमेरिज्म, हाँ सही लिखा था यार, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। टॉटोमेरिज्म, इनॉल अंडरगोज टॉटोमेरिज्म एंड फॉर्म्स व्हाट, एसिटाल्डिहाइड। और टॉटोमेरिज्म क्या है, शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन टू एडजेसेंट कार्बन एंड at the same time shifting of this carbon carbon double bond, pi bond of this carbon carbon double bond between what, C and O bond, okay, in between C and O। तो ये मिल गया मुझे कंपाउंड। एक बार फिर से देख लो, now you are replacing this H, this is what, कॉमन नेम मुझे नहीं चाहिए IUPAC नेम, IUPAC तो इथाइन है, कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। now I am replacing this H with the help of CH3, so this is known as methyl acetylene or acetylene, this is methyl acetylene or acetylene। इसका ये एसिटिलीन इसका क्या है, कॉमन नेम है, हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल एसिटिलीन, एक और मिथाइल ऐड करूंगा तो डाइमिथाइल एसिटिलीन। ये भी आपको आना ही चाहिए। इथाइन तो मुझे पता ही है, ठीक है, प्रोपाइन है ये इथाइन है, बट मुझे ये कॉमन नेम चाहिए। Now I am going to do what? I am writing this one, Hg+2, ध्यान देना, H plus and plus H2O, दिख रहा है, यही सेम लिखा है मैंने, बट इस वाले फॉर्मेट में भी लिखा है। HgSO4 को क्या लिख दिया, Hg+2, H2SO4 को क्या लिख दिया, H plus and water। तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, नहीं कि सर HgSO4 तो नहीं लिखा था इधर, H2SO4 तो नहीं लिखा था, नहीं ये लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है वो, ओके। What we have to do? We have to add water। कैसे ऐड करना है, ब्रेक करके, किसमें, इन दो कार्बन, जिन दो कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यहाँ पे ऐड करना है। अब कैसे ऐड करूंगा, क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं, इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन है, फिर क्या, फिर मुझे अप्लाई करना है क्या, ऑलरेडी आपने पढ़ा पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल, कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाई, बिकॉज वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन। So the negative part of the reagent attached to that carbon of the triple bond या double bond which has less number of hydrogen। तो इसके पास तो एक है हाइड्रोजन, बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो यही पे ऐड करूंगा, कौन, किसको, OH को। ध्यान देना भाई, CH3COH डबल बॉन्ड, फिर क्या बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और ऐड कर दिया, दिस इज व्हाट, इनॉल, इसका नाम ही है इनॉल, इन है और ऑल है। फिर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, क्या होगा बेटा, टॉटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, सॉरी बॉन्ड, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा। सो वी गेट दिस कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको कि अगर आपने एसिटिलीन यूज किया है, when you have acetylene and you are doing hydration in presence of HgSO4 and H2SO4, then you get aldehyde। एक ऐसा केस है, केवल एक ऐसा अल्काइन है, कौन, acetylene, which when reacts with this HgSO4 and H2SO4 forms aldehyde। any other क्या, अल्काइन, any other, ये देखो, इसके बाद आप कोई भी अल्काइन ले लोगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर आपने उसके साथ इसका रिएक्शन किया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एसीटोन नहीं, कीटोन मिलेगा। उसमें एसीटोन भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल करके दिखा देता हूं, ओनली दिस एसिटिलीन विल फॉर्म एल्डिहाइड, एनी अदर डेरिवेटिव ऑफ दिस एसिटिलीन विल फॉर्म कीटोन। व्हेन वी गो फॉर व्हाट, हाइड्रेशन
in presence of HgSO4 and H2SO4. Getting the point? Okay. एक और एग्जाम्पल देख लो आप, रब कर दो इसको. नेक्स्ट. सो आपने इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें सीख ली. कैसे हम लोग ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल का भी आपका रिवीजन हो गया, टॉटोमेरिज्म भी आपने सीख लिया. एक और एग्जांपल आप देख लो. यू हैव दिस CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3. H की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होगी. सो CH3 ये मेरे पास है. अब इसका नाम क्या होगा? इसको आप बोल सकते हो क्या? डाईमिथाइल एसिटिलीन और एसिटाइलिन. और क्या बोल सकते हो इसको आप इसको बोल सकते हो ब्यूटाइन. इसका ब्यूट 2 या 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2YNE. कौन सा पोजीशन पे? 1-2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है. नाउ यू आर एडिंग व्हाट? यू आर एडिंग HgSO4 प्लस H2SO4 और वाटर भी लिख सकते हो आप. तो पहले क्या होगा बेटा? आप इसको अपने शॉर्टकट में ऐसे लिख लो HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. इसकी जरूरत है क्या मुझे? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ 2-2 कार्बन है. तो फिर क्या करूँगा? कहीं भी ऐड कर दूंगा. मेरा मन भाई, जहाँ पे भी मन करेगा वहीं ऐड कर दूंगा. तो मैंने ऐड कर दिया. अब वो मन कहाँ पे जाएगा? वो जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं. ये तो पहले से सैचुरेटेड है. बोला मुझे जरूरत ही नहीं है, इस बंदे को जरूरत है. तो ये बन गया मेरा क्या? फिर से डबल ऐड कर दिया क्या मैंने? नहीं, OH ऐड करना था. यस, दिस इज व्हाट? इनॉल. दिस इज व्हाट? इनॉल. मैंने 2 बार ऐड कर दिया था CH3. तो एक OH मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और H यहाँ पे ऐड कर दिया. तो फिर क्या मिलेगा मुझे? ये देखो जरा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे मूव करने में इजी होगा. ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ. सो टॉटोमेरिज्म, वी गेट दिस कंपाउंड CH3C. ये देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन तो हो गया ना यहाँ पे, CH2 फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3. दिस इज व्हाट? दिस इज कीटोन. क्या नाम है इसका? कीटोन. कीटोन में भी कौन सा? ब्यूटेन 2-on और 2 ब्यूटेनोन. ठीक है. आप ये देखना मत कि सर यहाँ पे आपने छोटा सा एरो बना दिया, यहाँ पे भाई वो ऐसे ही बना दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है. मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ. ये तो 99% है, ये 1% है. मतलब जो भी बनेगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ओके, गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया? सो ओनली एसिटिलीन with HgSO4, H2SO4 on hydration will form aldehyde. Any other alkyne or acetylene derivative of acetylene will form, okay बेटा, acetone and butane 2-on, जो एल्डिहाइड का मैंने बोला. तो कितने मेथड आप याद करो, कितने मेथड हो गए? सो टिल नाउ वी हैव learnt few methods for the preparation of aldehyde and ketones. Now we are going to learn about next one, preparation of aldehydes. Preparation of aldehydes. इसमें first Rosenmund reaction. Rosenmund reaction important, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Rosenmund reaction. In Rosenmund reaction what happens when benzoyl chloride when benzoyl chloride reacts with hydrogen in presence of PDBaSO4. बस यही याद रखना मुझे. मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजोइल ग्रुप है. बेंजोइल, ये सभी ग्रुप मैंने बताया था आपको, टर्शरी, आइसो, बेंजोइल, बेंजाइल. इसलिए आपको याद रखना ये सब. ये ग्रुप याद नहीं रहेगा तो आप वैसे रिएक्शन नहीं लिख पाओगे. तो ये तो याद रहना ही चाहिए आपको. बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन बट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पीडी का मतलब पैलेडियम, एंड BaSO4, देन व्हाट हैपेंस? वी गेट दिस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH एंड प्लस HCl. तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे रख दिया है और ये हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर कर दिया. तो दिस इज व्हाट? दिस इज बेंजल्डिहाइड.
दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। गेटिंग द पॉइंट? बहुत ही सिंपल है, वर्ड में लिखना है तो क्या करेंगे, व्हेन बेंजोइल क्लोराइड और व्हेन असाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आप कोई और भी क्लोराइड ले सकते हो, ये असाइल ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड OCl क्या है, असाइल क्लोराइड ही तो है ना। अब इसमें असाइल के प्लेस पे, अब R के प्लेस पे आपने क्या ले लिया है, बेंजीन ले लिया है, तो उसका नाम क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। सो बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, वी गेट व्हाट, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। सेकेंड मेथड, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, रिएजेंट कौन सा यूज करने वाले हैं आप, ध्यान देना, रिएजेंट, रिएजेंट क्या है, SnCl2 प्लस HCl। यहां पे रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है बेटा, यहां पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, ये। सो व्हाट हैपेंस इन स्टीफन रिएक्शन, व्हेन अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल, when alkyl nitrile, this is nitrile, alkyl nitrile, when alkyl nitrile reacts with SnCl2 plus HCl, then it forms aldehyde। कैसे, ये दोनों रिएक्शन करके बेटा क्या जनरेट करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, मींस फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये प्रिपेयर होगा, फिर ये रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, RCH, ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड N, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी H, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन कितने देखिए, यहाँ पे एक यहाँ पे यूज किया और आपने एक यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2। ये मिल गया मुझे इंटरमीडिएट, क्या मिल गया मुझे, इंटरमीडिएट। इसका नाम क्या है, इमाइन। क्या नाम है इसका, इमाइन। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं इसको, इमाइन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बनता है, कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है, इमाइन। अब ये जो इमाइन है इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस, और यू कैन राइट H प्लस एंड H2O। ठीक है बेटा, कैसे करोगे जरा बताओ मुझे। अब ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव। बिकॉज आपको पता ही है, क्यों मैं बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्या करना, हाइड्रोलिसिस का मतलब फिर से HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या, कहां पे ऐड करोगे, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है भाई, यहाँ पे कार्बन है प्लस, यहाँ पे माइनस, सो नेगेटिव पार्ट अटैच टू नेगेटिव, किस अटैच होगा, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव किस अटैच होगा, नेगेटिव से, सिंपल सा। सो वी गेट RCHOH, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2। अभी क्या होता है बेटा, फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, और ये तो पड़ा हुआ है ना सॉल्यूशन में, तो HCl बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, NH3 और NH3 HCl, तो NH3 प्लस HCl क्या बन जाएगा, NH4Cl, NH4Cl। और यहाँ पे देखो RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, क्या मिल गया मुझे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। यू हैव अल्काइल नाइट्राइल रिएक्ट विद दिस, दीज टू फर्स्ट प्रोड्यूस देयर नेसेंट हाइड्रोजन, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इमाइन। कैसे ऐड कर रहा हूँ देख लो। फिर क्या करूँगा, हाइड्रोलिसिस। आप हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें देखो प्लस वाला पार्ट जो है माइनस के पास, माइनस वाला पार्ट प्लस के पास, आपको ये मिलेगा। फिर ये रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ पे। सॉल्यूशन में बहुत सारा HCl, तो जो भी अमोनिया फॉर्म होगा वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट, NH4Cl, जो नीचे बैठ जाएगा। और आपके फिल्ट्रेट मतलब जो पानी वाला पार्ट रहेगा, लिक्विड वाला पार्ट, उसमें क्या रहेगा, एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड रहेगा आपका। पानी कहने का मतलब पानी नहीं है, वहाँ पे लिक्विड वाला जो पार्ट है, और जो सॉल्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ऐसे, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए, SnCl2
HCl, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट कर लिया, ये सेकेंड, और बाद में क्या कर दिया यहाँ पे हाइड्रोलिसिस H3O+, और डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप RCHO, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। So when alkyl nitrile react with SnCl2 in presence of HCl, then it forms aldehyde, yeah, then it forms imine. Imine on hydrolysis forms what? Aldehyde. This is known as Stephan reaction. When benzoyl chloride or when acyl chloride or aryl chloride, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, benzoyl chloride और acyl chloride reacts with hydrogen in presence of PdBSO4, then it forms what? Benzaldehyde. रिएजेंट याद रखना चाहिए, कोई आपको वर्ड में नहीं पूछने वाला है, एप्लीकेशन पूछने वाले हैं वो आपसे। एक और इंपॉर्टेंट देखिए, ये थर्ड सेकंड हो गया, एक थर्ड, एक मैं आपको रिएजेंट लिखता हूं डिबाल। रिएजेंट क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग? डिबाल, DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म है, डिबाल का फुल फॉर्म। मैं क्या बोल रहा हूं? डब्बा, डब्बे से याद रखो, डब्बा, डब्बा यूज करना मुझे। कौन सा डब्बा? डिबाल, डाई आइसोब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम बना दिया मैंने और उसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है। अब इसमें दो क्या मुझे ऐड करना है? दो क्या? आइसोब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप ऐड करना? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्या होता है बेटा? ये देखो CH3 CH CH3 CH2, यही तो है ना, यही तो है मेरा आइसोब्यूटाइल। अब यही ऐड कर दूं यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे देखो बेटा CH2, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? CH, फिर क्या? CH3, यहाँ पे भी क्या? CH3, फिर सेम वे में CH2, फिर क्या? CH, CH3, यहाँ पे भी क्या? CH3। ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको रब करूँ, ये तो आपका हो गया ना, एक बार देख लो, पॉज करके देख लेना, फिर इसको रब कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे बेटा? ये देखो CH3 CH CH3 CH2, अब ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसे भी आप लिख सकते हो। और डाई या आइसोब्यूटाइल, देखो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। तो आपको सब रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो क्या करता है बेटा ये भी आपके, अब जितने भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नेम्ड रिएक्शन है। अब वहाँ पे रिएजेंट है, सो व्हाट हैपेंस, ये थर्ड है, थर्ड कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्हेन यू हैव एन RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस रिएक्ट्स विथ आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और DIBALH, डिबाल, डाई आइसोब्यूटाइल, या इसको भी कैपिटल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होगा बेटा? ये यूज करो या ऐसे लिखो, इसको किस में, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? RCHO। बाकी बीच में क्या हो रहा है मुझसे नहीं मतलब, उसके लिए हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल क्या याद रखेंगे कि भाई डिबाल यूज करूंगा किसमें? अल्काइल नाइट्राइल में, तो क्या कन्वर्ट करके देगा? एल्डिहाइड बना के देगा। स्टीफन में क्या करूंगा? ये रिएजेंट यूज करूंगा, तो फिर से यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनने वाला है। स्टीफन में भी एल्डिहाइड बनेगा, डिबाल से भी एल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइल से भी एल्डिहाइड बनेगा, बट रिएजेंट अलग अलग है। सबसे आप एल्डिहाइड ही बना रहे हो, बट रिएजेंट अलग अलग है।
और ये नाइट्राइल, इसमें एक और भी है कि व्हेन यू हैव दिस कंपाउंड RCH, आप ऐसे ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर क्या यूज करो यहाँ पे, ऐड कर दो डिबाल। ठीक है बेटा, डिबाल यूज करेंगे तो फिर क्या मिलेगा मुझे तो पता है, ये देखो, ये केवल चेक करना मुझे, C ट्रिपल बॉन्ड N, बाकी वैसे ही लिख देना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड क्या CH2 एंड क्या CHO। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है उसमें नाइट्राइल भी है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, डिबाल ऐड करूंगा तो वो डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ओनली इट कन्वर्ट्स दिस C ट्रिपल बॉन्ड N इनटू व्हाट, CHO में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई सिंथेसिस करना है मुझे और वहाँ पे डबल बॉन्ड मुझे चाहिए, ठीक है, उस कंपाउंड में, तो अगर और कोई दूसरा यूज़ करूँगा तो वो डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर देगा। मुझे डबल बॉन्ड वैसे ही का वैसे चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये रिएजेंट। इसलिए इसको आप पढ़ रहे हो, आप हायर स्टडीज़ में जब सिंथेसिस करोगे तो इन सभी का इंपॉर्टेंस आपको पड़े, भाई ये बॉन्ड मुझे रखना है, ये OH रखना है, ये ग्रुप रखना है, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक हम क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट्स यूज़ करते रहते हैं। तो 3 मेथड पढ़ लिया हमने, कौन कौन सा, रोजेनमंड और कौन सा, स्टीफन। रोजेनमंड में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड विथ व्हाट, हाइड्रोजन एंड PDBSO4। इन व्हाट, इन स्टीफन वी हैव अल्काइल नाइट्राइल, और नाइट्राइल reacts with SnCl2 HCl produces imine, then aldehyde on hydrolysis. Third one, now we are using what, reagent dibal diisobutyl aluminium hydride, फिर ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है नाइट्राइल को, किसमें, CHO में, डबल बॉन्ड है, टच नहीं करेगा। इसका एक और इंपॉर्टेंस है, when you have ester and you are using what, dibal, then it converts this ester into what, aldehyde। क्या बात है, ये देखो कितना प्यारा काम कर रहा है, ये एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी कौन कहाँ पे जाता है मुझसे क्या मतलब भाई, मुझे ये वाले बंदे को, ये वाला जो दिख रहा है ना पार्ट, ये पार्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्डिहाइड में। कौन, डिबाल। डब्बा समझ रहे थे हम लोग, लेकिन काम का निकल गया ये तो, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। तो लिख लो आप इसको। सो आज के लिए एक और मेथड भी है, अभी 2-3 मेथड और भी हैं, बट दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आपको समझेगा नहीं, बट दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, व्हेन यू आर वॉचिंग दीज वीडियो लेक्चर्स, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप बैठ के देखो। लास्ट लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि आप टेबल चेयर पे बैठ के देन वॉच दीज वीडियोस, देन यू विल एंजॉय, राइट द इन द टेक्स्ट योर नोटबुक और ऑन रफ बुक, प्रैक्टिस ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। देखने से कुछ नहीं होने वाला, सब यादों में ही रह जाएगा और यादों में ही वो चला भी जाएगा, फिर वो बुक पे नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाओगे कहीं पे। सो उन यादों को समेट के उन नोटबुक पे उतार दो, लिख दो अपनी भावनाओं को। कहाँ पे, उस नोटबुक पे। कौन सी भावनाओं को, उन यादों को। किसकी यादों को, केमिस्ट्री की यादों को। कहाँ पे, अपनी नोटबुक में। समझ में आया। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। कौन कौन सा पढ़ा हमने, फिर से मैं एक बार बोल दूं। आज हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें कितने पढ़े, 3 पढ़े। फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें 2 पढ़े हमने। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ओके। एंड देन सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स, उसके लिए कौन सा पढ़ा हम लोगों ने। फर्स्ट वन रोजेनमंड रिएक्शन, सेकेंड वन स्टीफन रिएक्शन एंड थर्ड वन डब्बा, दैट इज डिबाल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, एंड लगे रहो। थैंक यू।